Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing Indo-Nepal relationship under the chapter Contemporary South Asia, and we have seen that the two countries share a very unique relationship with each other, because we see that the citizens of both the countries do not need any kind of visa or passport in order to travel or in order to work in each other's country. But still we see that there are many issues on which conflicts are there between India and Nepal. Like first of all, we have seen that we have some trade related disputes, and other than this we have also seen that India is also express its displeasure over the warm relationship between China and Nepal, and the spread of Maoist movement in Nepal is a security threat for India, because it is also spreading in India as Naxalite. We know that the Naxalites are very much active in the bordering states, which border with Nepal. Like it starts from Bihar and it goes up to the Andhra Pradesh in the south. And other than this, we also see that in Nepal, it is the opinion of the leaders as well as people that India interfere in their internal matters. India behaves like a regional bully, and India wants to have its own say in the matters of this hydroelectricity plants, which is to be started in Nepal. So India want to design them according to its own desire. It is the allegation of Nepal. And we have seen that Nepal is a landlocked country, but here we see that it does not get access to the sea through Indian territory. Indian government does not allow access to sea to the country, to Nepal. So this is also a cause of conflict between these two countries. But still we see that in spite of all these issues, the countries are having stable and peaceful relationship. Differences are there, conflicts are there, still we have trade relationship. We have cooperated on the matters of science and technology. Then कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं उस पर भी हमने आपस में कोऑपरेट किया है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी जो डायलॉग्स हैं वो हो रही हैं, ताकि दोनों कंट्री मिल करके वाटर मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके. सो हम ये कहेंगे कि नेपाल के साथ हमारा रिलेशन इज़ पीसफुल एंड स्टेबल. एंड with the adoption of the new constitution in the year 2015, Nepal has become a complete democracy, and now there is a hope of a more strong relationship between the two democratic countries in future. Okay, so this is all about Indo-Nepal relationship, and now we will see the relation of India with another neighboring countries, and that is Sri Lanka. Indo-Sri Lanka relationship. So as when we were discussing the internal politics of Sri Lanka, we have seen that there was
ethnic conflict in Sri Lanka, and in this ethnic conflict, Tamils were involved. Tamils who originally belonged to India. So we have seen that how India got involved in the internal matter of Sri Lanka. There was an accord between the Indian government and the Sri Lankan government in 1987, and according to that accord, the Indian troops went to Sri Lanka. And this Indian troop was known as IPKF, Indian Peacekeeping Force. And what we find that this IPKF came into very much controversy. First of all, the matter was that India was supposed to protect the interest of the Tamils in Sri Lanka. But when India sent its troop IPKF to Sri Lanka, actually this IPKF was fighting against LTTE with the Sri Lankan government. So it was a contradictory situation. And not only this, what happened that the Sri Lankan government and people also started to feel that on their territory there should not be presence of any foreign military, which was present as IPKF, Indian Peacekeeping Force. So Sri Lankan government also started to feel that it is a kind of encroachment on their sovereignty. So what happened that without fulfilling its responsibility or its assigned work, the IPKF came back, है ना. IPKF जो है वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वापस आ जाती है. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद से आफ्टर दैट इंडिया हैज़ नॉट इंटरफेयर्ड इन एनी काइंड ऑफ इन एनी वे इन दैट मैटर. तमिल्स को लेकर के जो भी कुछ वहाँ का मैटर था उसमें इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया. और एंड अब क्या है कि हम देखते हैं कि अगर इंडो श्रीलंका रिलेशनशिप को अदर देन दिस प्रॉब्लम हम देखें तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छा है. वी हैव अ वेरी गुड ट्रेड रिलेशन. बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम का ट्रेड हम करते हैं एक दूसरे के साथ. और इतना ही नहीं, वी हैव ऑल्सो साइंड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद श्रीलंका. तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जब है तो ये हमारे रिलेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है. एंड 2004 में जब सुनामी आया इंडियन ओशन में, तो सुनामी का जो इम्पैक्ट था वो इंडिया पर तो हुआ ही, लेकिन श्रीलंका पे बहुत ज़्यादा श्रीलंका में डिस्ट्रक्शन हुआ था बिकॉज ऑफ दैट सुनामी. तो इंडिया ने उस समय बहुत ही हेल्प किया. सुनामी के बाद का जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ श्रीलंका में उसमें इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी की पूरी सपोर्ट दी थी. और इससे दोनों कंट्री जो है वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आए. तो इंडो श्रीलंका रिलेशन में अगर हम कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे तो बस एक ही कॉन्फ्लिक्ट है जो कि हम देखेंगे 1987 का अकॉर्ड. एंड सेंडिंग ऑफ IPKF, है ना. और इसके अलावा और अगर कोऑपरेशन देखते हैं तो कोऑपरेशन हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. दोनों देशों के बीच में ट्रेड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ना. एंड सपोर्ट ऑफ इंडिया in reconstruction. After tsunami of 2004. 2004 के सुनामी के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन होता है उसमें इंडिया का सपोर्ट. तो ये दिस इज अबाउट इंडो श्रीलंकन रिलेशनशिप. एंड नाउ वी विल सी इंडियाज रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. नाउ भूटान, इंडो भूटान रिलेशनशिप. भूटान, we have
a very special relationship with Bhutan also, and we don't have any major conflict with the Bhutanese government. किसी भी तरह का कोई भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और जो भूटानीज मोनार्क है उन्होंने जैसे कि हमारा जो भूटान का अगर आप लोकेशन देखिए तो कहाँ है, इधर सिक्किम और इधर जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री उनके बीच का जो पोर्शन है दैट इज भूटान, है ना। यू मस्ट ऑब्जर्व द map, not only the map of India but the world map must be observed by you. You must have idea कि which country is located where, है ना। तभी आपको ज़्यादा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो इंक्रीज करेगी। तो जो भूटान का लोकेशन है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से के बॉर्डर पे है। तो ये जो बॉर्डरिंग है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और हम जानते हैं वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, रीजनल एस्पिरेशंस हैं वहाँ पे, कई सारे जैसे मिज़ोरम का, नागालैंड का, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और हम कह सकते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है। तो इस तरह के सिचुएशन में हमने देखा कि भूटान की तरफ से हमें हेल्प मिला, है ना। जो गुरिल्लाज और मिलिटेंट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काम करते हैं, एक्टिव हैं, उनको भूटान की गवर्नमेंट ने वहाँ से हटाने में अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट हुआ वो उन्होंने इंडिया को दिया। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, हमारा रिलेशन इससे मजबूत बनता है। Besides, India also gave financial aid to Bhutan. इंडिया एक्चुअली अगर हम कहें तो इट विल नॉट बी एन एग्जैगरेशन कि इंडिया जो है वो इस भूटान के लिए बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड रहा है। डेवलपमेंट पर्पज से जो भी फाइनेंशियल एड चाहिए वो इंडिया ने भूटान को प्रोवाइड कराया है। इसके अलावा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं भूटान में उसमें भी इंडिया ने उसको जहाँ तक हुआ है टेक्नोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड किया है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया है। तो दिस इज आवर रिलेशनशिप विथ इंडिया एंड भूटान। ओके, तो इंडिया भूटान के रिलेशनशिप में ये सारी हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इंडिया और भूटान के बीच के रिलेशन में हम लोग यही देखेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हेल्प फ्रॉम Bhutanese monarch in weeding out the guerrillas and militants. Guerrillas and militants from northeastern states of India. इसके अलावा जो इन दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन को इम्प्रूव करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि इंडिया is the biggest source of
development aid for Bhutan, and third is India is also involved in the hydro electricity projects of Bhutan. ओके सो यू मस्ट रिमेंबर, ये हमेशा आपको याद रखना है कि आपका जब भी आंसर किसी भी तरह से प्रिपेयर हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, आपका आंसर पॉइंट्स में ही होना चाहिए. अगर इंडिया और भूटान के बीच का रिलेशनशिप क्वेश्चन है तो इट शुड बी फ्रेम्ड लाइक दिस. आपको स्टार्टिंग करना है इंडिया के बारे में, भूटान के बारे में. दे आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. अगर साइज के हिसाब से देखें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एंड भूटान कम्स अंडर द स्मॉलर स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया. और फिर आपको इनके रिलेशन के बारे में देना है कि दे शेयर अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप एंड देयर इज नो मेजर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज. फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडो भूटानीज रिलेशनशिप. ठीक है, उसके बाद आपको ये सारे देने. तो इस तरह से आपका आंसर प्रिपेयर होना चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इंडिया का रिलेशन मालदीव्स के साथ. जैसे कि हम लोग जानते हैं मालदीव्स एंड भूटान, दीज आर द टू स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. तो मालदीव्स के साथ भी अगर हम देखें तो इंडिया का रिलेशन जो है वो अच्छा है. इट इज़ वार्म एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप. एंड नवंबर 1988 में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए थे जिसमें इंडिया ने मालदीव्स का हेल्प किया. और जो डेवलपमेंट था वो ये था कि मालदीव्स की जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट कूप का एफर्ट किया गया था. कूप डेट जिसे हम कहते हैं, जो कि इटालियन टर्म है जिसका मतलब होता है तख्ता पलट, है ना. तो ये तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, कूप का अटेम्प्ट किया गया था मालदीव्स में. एंड दिस अटेम्प्ट वाज डन बाय अ बिजनेसमैन जो कि काफ़ी वहाँ के रिचेस्ट बिजनेसमैन थे. उनकी तरफ से ये एफर्ट किया गया था. उनके साथ और भी ग्रुप ऑफ पीपल था उनका सपोर्ट के लिए. और उन्होंने जो हेल्प लिया, उस बिजनेसमैन ने जो हेल्प लिया कूप करने के लिए, मिलिट्री हेल्प लिया. कहाँ से लिया? ये मिलिट्री सपोर्ट उन्होंने LTTE से लिया. ठीक है, और you will see that in your book a term is used as mercenaries. अब ये जो टर्म है मर्सनरीज का मतलब होता है पैसे देकर. जब हम हायर करते हैं सोल्जर्स को, भाड़े के सैनिक, ठीक है, पैसे के बदले में. ऐसे जो हमारे किसी भी कंट्री की जो सैनिक होती है, दे आर लॉयल टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री एंड बिकॉज ऑफ लॉयल्टी, बिकॉज ऑफ पैट्रियोटिज्म दे फाइट अगेंस्ट द एनिमी. बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि जो कूप हुआ मालदीव्स में इन नवंबर 1988, इस कूप में जो मालदीव्स में एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिसका लीडर एक बिजनेसमैन था. उस बिजनेसमैन ने इन भाड़े के सैनिकों को, मर्सनरीज को खरीदा. जो कौन थे? जो LTTE, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था श्रीलंका में, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो है, उसके लोगों को उन्होंने पैसे दे करके मालदीव्स में बुलाया और इनके हेल्प से वो कूप करना चाहते थे, तख्ता पलट करना चाहते थे. तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इंडिया का तो मालदीव्स के साथ अच्छा रिलेशन था ही. तो मालदीव्स की जो करंट गवर्नमेंट थी उसने इंडिया से हेल्प मांगा, मिलिट्री हेल्प. ठीक है, और इस मिलिट्री हेल्प में इंडिया ने मतलब इंडिया की एयरफोर्स जो थी और नेवी, ये दोनों ही
पूरी तरह से हेल्प किया, ठीक है, क्योंकि वो आइलैंड है तो वहाँ पर हमारी नेवी पहुँच गई और हमारी एयरफोर्स ने भी मालदीव्स को हेल्प किया। बहुत तुरंत क्विक रिस्पांस इंडिया का रहा और इस अटैक को, ये जो एलटीटी की हेल्प से अटैक करवाया गया था मालदीव्स पे, उसके ही कंट्री के लोगों ने तख्ता पलट के लिए जो किया था उसको ख़त्म कर दिया गया, डिफीटेड हो गया वो। तो इसमें इस तरह से इंडिया ने उस समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मालदीव्स की सरकार को बचाने के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इंडिया ने एड दिया है मालदीव्स को, और टूरिज़्म और फिशरीज इन सब में इंडिया ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मालदीव्स के लिए आपको मेन जो है वो यही है कि नवंबर 1988 में जो कूप का जो एफर्ट हुआ और उस कूप के लिए जो एलटीटी के मर्सनरीज से अटैक कराया गया, तो उसमें इंडिया की नेवी और एयरफोर्स दोनों ने उसके अगेंस्ट लड़ाई करके उनको डिफीट कर दिया था। और इसके अलावा डेवलपमेंटल एड भी इंडिया जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा मालदीव्स के साथ रिलेशनशिप कंप्लीट हमने कर लिया, ठीक है। और अब हम फिर से वही देखेंगे, अगर हम जिस किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन देख रहे हैं साउथ एशिया में, तो इंडिया जो है उसके सेंटर में है ना। और इंडिया के जो नेबर्स हैं, सारे नेबर्स के साथ इंडिया के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा कोई भी नेबर हमने नहीं देखा जहाँ पर कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सिर्फ हमारे वार्म रिलेशंस ही हैं, सारा कुछ पॉजिटिव ही है। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है, हर कंट्री के साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। और इस कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न यही है कि इंडिया की साइज़ बहुत बड़ी है, इंडिया एक बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री, और इस कारण वो जो इसके नेबर्स हैं जिनकी साइज़ बहुत ही छोटी है, जो बहुत ही कम पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया के इंटेंशंस को सस्पिशियसली लेते हैं। दे आर डाउटफुल ऑफ द इंटेंशन ऑफ इंडिया, है ना। और इसमें यह है कि इंडियन गवर्नमेंट का कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि वो बुली करना चाह रहा है या इंटरफेयर करना चाह रहा है। वो अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया का कंसर्न है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेंट्रली लोकेटेड है साउथ एशिया में, तो इंडिया क्या चाहती है कि जो भी उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इनस्टेबिलिटी नहीं आए। अगर सपोज नेबरिंग कंट्री नेपाल है, नेपाल में जिस तरीके से माओइस्ट मूवमेंट जो था वो बहुत स्प्रेड हो जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माओइस्ट मूवमेंट हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा। इंडिया में भी माओइस्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, आंध्रा तक चले गए हैं। तो ये क्या है, अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में इनस्टेबिलिटी है, अब अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में किसी भी तरह का वायलेंस हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, इंटरनल प्रॉब्लम, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि किसी भी तरह का इनस्टेबिलिटी अगर नेबरिंग कंट्रीज़ में होता है तो उससे क्या होगा कि इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी चीज़ होगी कि जो आउटसाइड पावर्स हैं, आउटसाइड पावर्स मतलब वो पावर्स जो कि साउथ एशिया के नहीं हैं, उनको इंटरफेयर करने का मौका लग जाएगा, जो कि इंडिया नहीं चाहती है। ये साउथ एशिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम आपस में सॉल्व करें। आउटसाइड पावर्स जैसे चाइना है, अमेरिका है, इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, इंडिया का ये सोच है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है, बट इट इज़ नॉट इंटरफेयरिंग एक्चुअली, इट वांट्स पीस इन द रीजन। क्योंकि अगर अनरेस्ट होगा, अगर वायलेंस होगा, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। और न सिर्फ इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बल्कि जो आउटसाइड पावर्स हैं दे विल स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द मैटर, और इस तरह से हमारे जो रीजन है उसकी पीस चली जाएगी। तो इसलिए इंडिया का ये इंटेंशन होता है। बट the smaller countries of South Asia, they start thinking that India wants to be a regionally dominant power. India wants to dominate in this region, in the South Asia. India wants to dominate, but ऐसी बात नहीं है. So this is important for you to understand. And now we see that it's not
that India is only having problems with its neighbors. There are other problems also in which India is not involved. There are other problems between other countries in which India is not at all involved. Like you see Nepal and Bhutan. नेपाल और भूटान के बीच में भी डिसएग्रीमेंट हुए हैं पास्ट में, और डिसएग्रीमेंट का रीज़न है, जैसे अगर नेपाल और भूटान को हम देखें तो डिसएग्रीमेंट का रीज़न है माइग्रेंट्स, जो एथनिक नेपाली हैं उनका माइग्रेशन भूटान में हुआ, जिसके कारण भूटान और नेपाल के बीच का रिलेशन खराब हुआ। इसी तरह से अगर हम बांग्लादेश और म्यांमार को देखें तो इनके बीच भी जो रिलेशन है वो कई सारे रीज़न से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके रिलेशन में। लाइक इनमें भी जो रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट आने का मेन रीज़न है वो माइग्रेंट्स ही हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोहिंग्यास जो हैं बांग्लादेश से म्यांमार उनका जाना, ये जो है ये हमारे इनके बीच में बांग्लादेश और बर्मा नहीं म्यांमार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ ही प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स उनके आपस में भी हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो बांग्लादेश और नेपाल उनके बीच भी कुछ बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि जो रिवर वाटर है ब्रह्मपुत्रा नदी के वाटर को लेकर के बांग्लादेश और नेपाल के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है ना। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इंडिया के अलावे अदर कंट्रीज भी कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व है, लेकिन जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, जो सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें इंडिया इन्वॉल्व है, क्योंकि इंडिया इज़ द biggest country, not only size wise but in respect of power also India is the biggest country. So जो भी bigger matters हैं conflict के, उसमें इंडिया कहीं ना कहीं involved है, ठीक है। और एक तो लोकेशन इंडिया का बिल्कुल सेंटर में है, और सारे कंट्री के साथ जो भी साउथ एशिया की कंट्री हैं उनके साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, किसी के साथ लैंड बाउंड्री तो किसी के साथ वाटर बाउंड्री शेयर करता है। तो इस तरह से ये हमारा साउथ एशिया में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी एक जो एक पोर्शन आपको यहाँ पढ़ना था, पहले आप अपने चैप्टर में देखोगे चैप्टर 5 जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है, जो कि ओरिजिनली आपका चैप्टर 5 है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू रिवाइज सिलेबस इट इज़ चैप्टर 4। तो इसमें इस चैप्टर के कंटेंट में आप देखोगे सार्क दिया हुआ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, लेकिन ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जो सार्क आप अभी देख रहे हो इस बुक में, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो अंडर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, है ना। जब हमने न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, इसका प्रीवियस चैप्टर जो चैप्टर 3 है हमारा, जिसमें हमने यूरोपियन यूनियन पढ़ा, आसियान पढ़ा, ब्रिक्स पढ़ा और सार्क भी पढ़ा, तो सार्क के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब फिर से हमें उसमें नहीं पढ़ना है। एक पोर्शन हमारा इसमें रह जा रहा है जो कि हमें करना है, और वो है कि जो आउटसाइड पावर्स हैं, ठीक है, आउटसाइड पावर्स जो हैं वो किस तरह से इसमें इंटरफेयर करते हैं, हाउ आउटसाइड पावर इन्फ्लुएंसेस द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। तो इसको ही अभी हमें जो लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर के अंदर बच जा रहा है वो यही टॉपिक है। इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड पावर्स इन साउथ एशिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी रीज़न, कोई भी प्लेस जो है वो वैक्यूम में नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि साउथ एशिया है तो बस वो साउथ एशिया के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनसे ही वो गाइडेड होगा, उनका ही इन्फ्लुएंस होगा, बल्कि जो चारों तरफ का जो माहौल है that is it is very much natural that it will be influenced by its environment। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होगा ही होगा। कितना भी हम चाह लें
कि आउटसाइड की जो चीज़ें हैं वो हमें इन्फ्लुएंस ना करें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी रीज़न वैक्यूम में नहीं रह सकता है। वैक्यूम जहाँ पर कोई एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो आपके चारों तरफ का जो माहौल है दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू कांट escape फ्रॉम दिस। तो यही चीज़ हम साउथ एशिया में भी देखेंगे। ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन in the next class.